Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So today in this vocabulary series, we'll be learning some interesting words starting with letter I. So we have already done so many videos in this vocabulary series where we have discussed words starting with letter A till letter H. So if you have missed any of those videos, then you can have its access from the link that I've included in the description section of this video and even from the top right corner of your screen. I hope you're finding this series a helpful one. So if you have not subscribed to the channel till now, please hit the subscribe button and don't forget to click on the notification bell to get updated or stay updated about the upcoming videos. Now, let's continue with this video today and watch the video till the end because every word is important. Yes? So now let's start with the first word for today, that is illicit. Illicit, an adjective which means unlawful, forbidden और illegal. तो कोई भी इलीगल चीज़ होती है, अनलॉफुल होती है, जो लॉ के खिलाफ है, राइट, लॉ अबाइड नहीं करती है, सो दैट इज इलिसिट. Let's see the example. You will get to understand. BJP leader in UP held with illicit liquor worth 10 lakh rupees. So this is the headline taken from the article published in The Hindu. So here the word illicit means illegal liquor. Illegal liquor or illicit liquor is something, मतलब liquor which is not legal to be produced. तो उसकी जो क्वालिटी होती है, जो जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो काफ़ी इलीगल होता है और जो उसके बेंचमार्क्स होते हैं एल्कोहल और लिकर के, वो उस इलिसिट लिकर डज नॉट फुलफिल दैट. सो इट इज़ नॉट लीगल टू प्रोड्यूस एज वेल एज सेल. तो इस तरीके की लिकर को इलिसिट. सो हियर द वर्ड इलिसिट मीन्स इलीगल. आई होप यू गेट दिस. Moving forward, second word for today is imminent. Imminent is adjective again. It means impending, forthcoming or threatening. So in simple words, if I explain, imminent means something which is ready to take place or it is about to happen soon. कुछ चीज़ अभी आगे आने वाले टाइम में होने वाली है जल्दी. So that is referred as इमिनेंट. कहीं कहीं पे ये वर्ड नेगेटिव कोनोटेशन में यूज़ किया जाता है जब कोई बुरी चीज़, समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, सो वी यूज़ दिस वर्ड इमिनेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल. वेरियस स्टेट्स हैव वार्न्ड ऑफ इमिनेंट वाटर क्राइसिस. ठीक है, तो हीट वेव्स, समर स्टार्ट हो गए हैं और इस टाइम पे वाटर क्राइसिस काफ़ी बढ़ जाता है काफ़ी सारी जगहों पे, काफ़ी सारे स्टेट्स में. सो ये प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस की आने वाली है, या इट इज़ अबाउट टू हैपन. That's why we have used the word here imminent. Okay, so when something is about to happen, it is termed as imminent. I hope you get this. Moving on to the third word for today, that is immutable. It's also an adjective, so we'll be learning a lot of adjectives today. Yeah, and immutable means unchangeable, जिसको बदला नहीं जा सकता. ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा. That means immutable. Moving on to the example. I recently read a book titled The 22 Immutable Laws of Marketing. ओके, सो यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब हुआ ऐसे लॉज मार्केटिंग के जो कभी बदलेंगे नहीं, जो हमेशा से वैसे ही हैं. सो इम्यूटेबल मीन्स हियर अनचेंजेबल. इट कांट बी चेंज बाय एनीवन. Moving on to the fourth word for today, that is impeccable. Impeccable is again an adjective. It means faultless, without flaw or error, ideal. तो इसका मतलब हुआ समथिंग विच इज़ विदाउट एनी मिस्टेक और एरर. ठीक है, एकदम परफेक्ट हो, कोई भी एरर नहीं हो. ठीक है, दैट इज रिफर्ड एज इम्पेकेबल. मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल. I scored full marks in exam because of my impeccable answers. Impeccable answers means accurate answers. Okay. सो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पेकेबल का मतलब हुआ एक्यूरेट. ठीक है, विदाउट एनी एरर्स, इसलिए मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले. आई होप यू कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल्स, आई गेस. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वर्ड फॉर टुडे, दैट इज इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट इज अ वर्ब विच मीन्स एन ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस. ठीक है, तो रुकावट. ठीक है, कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस काम में बाधा डालते हैं, एज एन हिंड्रेंस काम करते हैं. सो वी हैव द वर्ड फॉर इट एंड दैट इज इम्पेडिमेंट. लेट्स सी द एग्जाम्पल.
प्रोक्रेस्टिनेशन इज माई बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू अचीविंग माई गोल्स. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को डीले करना, चीज़ों को टालना. आज नहीं यार, कल करते हैं, अरे आज वीडियो छोड़ो, परसों बनाते हैं. सो दिस इज़ वॉट प्रोक्रेस्टिनेशन इज़. सो वी ऑल हैव दिस. थोड़ा बहुत करके हमारे अंदर, सबके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ होती है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू अचीविंग आर गोल्स. इम्पेडिमेंट्स हियर मीन्स हिंड्रेंस, रुकावट. ठीक है. I hope you get this example, and that's why I put very easy example so that you can relate it, right? Moving on to the sixth word for today, that is impetus. Now, impetus is a noun which means momentum, motivation, या force. So, something that encourages you, ठीक है, और something that कुछ चीज़ encourage करती है कुछ होने के लिए, something to happen. राइट, दैट इज टर्म्ड एज इम्पेटस. मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलता है कोई चीज़ से, तो वो चीज़ इम्पेटस, उसको हम बोल सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल. सो हेयर इज इन हेडलाइन फ्रॉम द आर्टिकल प्रिंटेड इन पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, एंड द हेडलाइन इज सिडको टू फिल वैकेंसीज टू गिव इम्पेटस टू सिटी प्रोजेक्ट्स. तो सिडको इज़ नथिंग बट द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलाती हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल दैट. तो वहाँ पे जब तक वैकेंसीज फिल नहीं होंगी, सिटी के प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम होगा, राइट? तो सिडको टू फिल वैकेंसीज टू गिव इम्पेटस मीन्स अ मोमेंटम, अ फोर्स, अ मोटिवेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पेटस का मतलब है एक मोमेंटम, मतलब चालू करना. सिटी प्रोजेक्ट्स चालू होएंगे, फिर कंप्लीट होएंगे, तो वो एक वैकेंसीज फिल करके दे आर गिविंग एन इम्पेटस टू सिटी प्रोजेक्ट्स, अ मोमेंटम. मूविंग फॉरवर्ड, importune. Importune is a verb which means to press or urge with repeated request. तो जब हम किसी से बहुत बेग करते हैं, प्लीज़ डू दिस, ऐसा कर दो प्लीज़, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं जब किसी चीज़ को, बहुत अर्ज करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज importune and it is a verb. Moving forward to the example, the salesman importuned his prospect to buy from him. Right? We saw salesman, है ना, कभी कुछ उनका प्रोडक्ट होता है, उनकी सर्विसेज होती हैं, एंड दे मेक यू एम्पल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बाय फ्रॉम मी, है ना. दैट वो जो रिक्वेस्ट करने का नंबर, फ्रीक्वेंसी होती कितनी ज़्यादा होती है, राइट? दे गेट वेरी हार्ड ऑन यू, दे बेग टू यू कि प्लीज़ बाय फ्रॉम मी. तो दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज टर्म्ड एज importune. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, indemnify. Indemnify is a verb which means to compensate or secure with. ठीक है, सो वी कंपनसेट. तो जब हम किसी चीज़ से कंपनसेट होते हैं अगेंस्ट एनी लॉस वी सफ़र और एनी डैमेज वी फेस, तो दैट कंपनसेशन और सिक्योरिटी इज टर्म्ड एज indemnify. Okay, moving to the example, the company agreed to indemnify its employees against any loss. इसका मतलब to compensate against any loss. If employees goes through any loss, तो company will compensate them. They provide security to their employees. So this is how the word indemnify is used. Moving forward, ineffable. Ineffable is an adjective. It means inexpressible, not able to be described. Indescribable मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सके, दैट इज़ इनएफेबल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में लाइक सिंगिंग, डांसिंग हम देखते हैं, और ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते हैं जिसमें जजेस वहाँ पे कमेंट करते हैं कि द परफॉर्मेंस वॉज सो गुड दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम इनएफेबल बोलते हैं. दैट परफॉर्मेंस कैन बी टर्म्ड एज इनएफेबल विच इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स. Moving to the example, this trip was full of ineffable experiences and joy. मतलब ऐसे experiences which I cannot describe in words. Okay. Moving forward to the 10th word of today, and that is innocuous. Innocuous is an adjective which means harmless or innocent.
ठीक है. सो समवन और समथिंग विच इज़ नॉट मेंट और इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू एनीबडी, दैट इज इनॉक्यूअस. ठीक है. Now, here I see the example from the headline that was published in Hindustan Times again. So 50 to 60% of tweets asked by center to be blocked are innocuous. Twitter tells High Court. तो innocuous का यहाँ पे context में इस context में क्या meaning हुआ? Something which is it is not intended to harm anybody. तो इस तरीके के tweets को हमने innocuous term दिया यहाँ पे. Okay? I hope you are getting all these examples. कहीं पे कोई difficulty हो तो please feel free to comment down. Okay. 11th word for today is instigate. Instigate is a verb which means to initiate, to encourage, to provoke. ठीक है. इसी तरीके का word जो अभी हमने पढ़ा पीछे, that was impetus, right? So instigate also means to initiate something. किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को encourage करना. Let's see the meaning. The government has instigated an investigation into the cause of the accident. And I took this example from Merriam-Webster. So, instigated means initiated. कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका कॉज जानने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की, एनकरेज की कि भाई फाइंड आउट द कॉज, क्यों हुआ, राइट. सो दिस इज हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड है. Moving forward to the 12th word for today, that is interim. Interim is a Now let me tell you, interim is used as a noun somewhere and also as an adjective. So if we refer to as इसका मतलब जब noun के फॉर्म में हम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है मीन टाइम या इंटरवल. जो गैप होता है किन्हीं दो चीज़ों के बगल में, तो वो जो बीच में टाइम मिलता है, दैट इज़ इंटरिम. फॉर एग्जाम्पल इन मूवी थिएटर्स जब आप जाते हो तो थोड़ी देर तक मूवी चलती है, उसके बाद इंटरवल हो जाता है बीच में और फिर उसके बाद वापस मूवी स्टार्ट होती है. सो दैट इंटरवल, दैट मीन टाइम इज रिफर्ड एज इंटरिम. एंड व्हेन वी यूज इट इन एज एन एडजेक्टिव, देन दैट टाइम द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरिम मीन्स प्रोविजनल या टेम्पररी. ठीक है. सो टेम्पररी तो आपको पता है कि क्या इसका मीनिंग होता है. इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो कुछ टाइम के लिए हो, परमानेंट नहीं हो, राइट. सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दोनों डाले हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी. नाउन, जब हम एज अ नाउन इंटरिम यूज़ किए तब एग्जाम्पल मैंने डाला है. देयर वाज अ ब्रीफ इंटरिम इन द प्रोसीडिंग्स वाइल एवरीवन गॉट ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सबको भाई ऑर्गेनाइज होने का टाइम दिया हमने बीच में थोड़ा सा, दैट इज़ रिफर्ड एज इंटरिम. कोई इवेंट चालू होने से पहले हमने थोड़ा सा टाइम दिया सो दैट एवरीवन कैन सेटल डाउन, वो हुआ इंटरिम. Now when we use this word as an adjective, then the example comes here that Mr. X will serve as interim head of the police department until investigation is completed. तो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड तब तक रहेंगे मिस्टर एक्स जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती. As soon as investigation is completed, then he will not be the police department head maybe. So this particular example shows that he will be the police head for a temporary period of time, है ना. So that's why here it has been used interim head of the police department, which means temporary. So these examples I've taken from Merriam again. Now, intransigence is the 13th word for today and it is a noun which means refusal to come to an understanding. मतलब एक्चुअली में इसका मतलब हुआ कि अपना व्यू हमें चेंज ही नहीं करना है कि हम सामने वाली पार्टी के बात में अग्री कर जाएं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू पीपल आर, लेट्स सी द एग्जाम्पल देन वील गेट टू नो. द फाइट बिटवीन द टू लास्टेड फॉर सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ द इंट्रांसिजेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो दोनों आपस में अपने जो आइडियाज़ और ओपिनियंस हैं वो लेके चल रहे हैं, बट वी आर नॉट कमिंग टू एन अग्रीमेंट वॉट द अदर इज सेइंग. ठीक है. सो व्हेन वी ट्राई नॉट टू चेंज आवर ओन व्यू टू अग्री अबाउट समथिंग, दैट इज रिफर्ड एज intransigence, okay, or intransigent. I hope you get this. Moving to the 14th word for today and that is inundate. Inundate is a verb which means flood or overwhelm. तो यहाँ पे flood का मतलब बाढ़ नहीं है. flood का मतलब है जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए, that is flood. बोलते हैं ना, we are flooded with problems. जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी problems आ जाती हैं, so we say like this that we are flooded with problems right now. So this is what flood here means. Overwhelm, जब बहुत सारा कुछ मिल जाए या बहुत सारे टाइम के लिए कुछ हमें
मिल जाए, दैट इज टर्म्ड एज ओवरवेलमिंग, राइट? सो इनंडेट का मीनिंग समझते हैं विद एग्जाम्पल. आई होप यू विल गेट इट क्लियर. द स्टूडेंट्स वर इनंडेटेड विद असाइनमेंट्स a week before exams. So inundated mean they were flooded with assignments, इतने सारे assignment और अगले week से exams. So this is how inundated is used. ठीक है? To, it means to give, it also means to give or send someone so many things that he or she cannot handle them or deal with them, right? So this is what inundated means. Now moving on to the 15th word for today, and that is itinerary. Itinerary is a noun. It means a travel plan, a record of a journey. So when we go somewhere, we plan कि हमें यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ पे डिनर करना है. So वो पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड, वो पूरा ट्रैवल प्लानिंग is referred as itinerary. Let's see the example. I have already planned my itinerary for 15-day trip to Himachal. Okay. So this is the example. I hope you get these 15 words. Moving to the assignment part of the day, which you have to do for me. So the 5 words for today that you have to research on are immaculate, which is an adjective, impalpable, which is also an adjective, impertinent, an adjective again, 19th word inception, which is a noun, and 20th and the last word for today, that is indict, which is a verb. So research them. Tell me the meaning in the comment section. I'll be more than happy to look forward to them. All the best. See you in the next video. Till then, take care, stay safe, happy learning. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. Bye-bye.